اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ 35ویں سال کے بعد سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں حصہ لینا بند کر دیا اور اسے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے حوالے کر دیا۔ اب پیغمبر اسلام کو ضرورت نہیں ہر جگہ جانے کی، چنانچہ آپ مکہ میں ہی قیام کرتے ہیں۔ 36ویں سال سے پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پیغمبر شہر چھوڑ کر اکثر شہر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے مکے اور مینا کے درمیان جس کا نام ہے جبل نور، اسی کو فاران بھی کہا گیا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار بنا ہوا ہے جسے غار حرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ پہاڑ مکہ کے اندر آ گیا ہے، اس وقت یہ مکے سے تقریباً 3 دن دور مانا جاتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام وہاں جاتے تو اکثر ہفتے اور 10 دن تک وہاں رہتے تھے۔ چنانچہ جناب خدیجہ اپنے ہاتھ سے جو کا ستو بنا کر پیغمبر اسلام کے سپرد کرتی تھیں۔ پیغمبر اسلام ستو اور پانی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پورا ہفتہ یا 10 دن اس غار کی تنہائی میں اس طرح گزارتے تھے کہ کھانے کے وقت ستو کو پانی میں گول کر پی لیا، یہی پانی بن گیا، یہی کھانا بن گیا۔ پیغمبر اسلام جب جاتے تھے تو پہلے کعبے میں حاضری دیتے تھے، پھر غار حرا جاتے تھے، اور اسی طرح جب واپس آتے تھے تو پہلے غار حرا سے کعبے میں تشریف لاتے اور وہاں طواف کر کے پھر اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ گھر آ کر 2-4 دن قیام کیا اور پھر پیغمبر اسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ اسی عرصے میں رسالت کا آغاز ہونے کی خبریں پیغمبر اسلام کو ملنے لگیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نبی تو پہلے سے تھے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گیلی مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، لیکن رسالت یعنی دوسروں تک نبوت کو پہنچانے کا حکم پیغمبر اسلام کو ابھی نہیں آیا تھا، اور ولادت سے لے کر 37ویں سال تک پیغمبر کو کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی۔ 37 سال سے وہ زمانہ شروع ہوا جسے علماء اسلام نے زمانہ تحنس کا نام دیا ہے۔ اس زمانے میں پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی دوران پیغمبر اسلام کو خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام ہونے لگا اور آپ تک فرشتوں کی آواز آنے لگی، کیونکہ جیسے جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا ویسے ویسے فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی، لیکن ابھی حکم پروردگار نہیں تھا، اس لیے فرشتے براہ راست رسول کریم کے سامنے نہیں آتے تھے، صرف پیغمبر اسلام ان کی آواز سنتے تھے۔ فی الحال پیغمبر اسلام کو صرف الہام ہونے لگا تھا اور رات کو وہ خواب نظر آنے لگے تھے جیسا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، یعنی نبی کا خواب جو خود وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ 3 سال ایسے گزرے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 39واں سال ختم ہو رہا تھا اور 40واں سال شروع ہونے والا تھا، تب ایک تبدیلی اور آئی، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہمیشہ سے یہ خصوصیت تو تھی کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی اپنے بچپن میں بھی پیغمبر اسلام جس پتھر کے قریب جاتے تھے وہ سلام کرتا تھا، جس درخت کے قریب جاتے تھے اس کی شاخیں جھک جایا کرتی تھیں، جس جانور کے قریب سے جاتے تھے وہ احترام کرتا تھا۔ لیکن 40 سال کے آغاز میں تب یہ تبدیلی آ گئی کہ اب جو پتھر سلام کرتے ہیں وہ پہلے تو خالی السلام علیکم کہتے تھے، اب السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب جو درخت سلام کرتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کو رسول اللہ کا خطاب دے کر سلام کرتے ہیں۔ جانور جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب پروردگار عالم کی جانب سے ان جمادات و حیوانات کو حکم ملا اور یہ رسول کو رسول کہہ کر پکار رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات کو پیغمبر اسلام نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پیغمبر اسلام کو سلام کرتا ہے۔ اسی دوران پیغمبر اسلام کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی، لیکن پیغمبر اسلام نے اس کے 4 مہینے بعد اعلان رسالت کیا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے فرشتے کو خواب میں دیکھا، اس کے 1 یا 2 مہینے بعد جب ایک مرتبہ اپنے طریقے کے مطابق پیغمبر اسلام غار حرا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت پیغمبر اسلام نے پہاڑیوں پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا ومن انتا، تو کون ہے؟ جواب دیا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے پیغمبر اسلام یہ سوال کر رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے 40 سال گزر گئے اور اب جبرائیل پیغمبر اسلام کے سامنے آئے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ یہ سارے خواب، یہ الہامات، یہ فرشتوں کی آوازیں، یہ جانوروں، پتھروں اور درختوں کے طریقے میں تبدیلی، یہ خواب میں فرشتے کا آ کے سلام کرنا، یہ جبرائیل کا آ کے رسول کہنا،
ये सब चीज़ें पैगम्बर इस्लाम को बता रही हैं कि अब वो वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है कि जब मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद होने वाली है कि मैं अपनी नबूवत को अवाम तक पहुंचाऊं, यानी अपनी रिसालत का ऐलान करूं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 40 साल की उम्र में पैगम्बर इस्लाम को ये हुक्म मिला, लेकिन इससे पहले जो 40 साल रसूल के गुजरे हैं, क्या उन 40 सालों में रसूल का और अल्लाह का आपस में कोई राब्ता नहीं था? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि सबसे पहले वही जो आई वो 40वें साल आई, तो अल्लाह और रसूल के दरमियान इन 40 सालों में राब्ते का जरिया क्या था? खुद वही के मानी अरबी जुबान में है इशारा करना, किसी को किसी जानिब से किसी खास मकसद के लिए इशारा करना। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में वही का मतलब है कि अल्लाह की जानिब से बंदों की हिदायत के लिए जो नबी को इशारा होता है या पैगाम मिलता है, उसे वही कहा जाता है। अलबत्ता कुरान ने ये वही का लफ्ज पहले मानों में भी इस्तेमाल किया है और दूसरे मानों में भी। चुनांचे आसमानों के लिए आया कि उन पे वही नाजिल की गई, जमीन के लिए आया यौम-ए-दिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, कि जमीन क़यामत के दिन अपनी सारी खबरें बता देगी जो अल्लाह ने उस पर वही की हैं। तो जमीन के लिए कहा कि इस पे वही आती है, फरिश्तों के लिए कहा कि वही आती है। शहद की मक्खी के बारे में भी है कि उस पर वही आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे वही आई। तो वही का लफ्ज कुरान में तमाम मखलूकात के लिए इस्तेमाल हुआ है कि इंसानों पर वही हुई, जानवरों पर वही हुई, आसमान पे वही हुई, जमीन पे वही हुई, मलाइका पे वही हुई। शैतान तक के बारे में आया है कि शैतान अपने औलिया को वही करता है। लेकिन इस वक्त जिस वही पे हमारी गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह की जानिब से अपने रसूल पर बंदों की हिदायत के लिए जो वही नादिल होती है, ये 5 तरीकों से आ सकती है। कुरान करीम में 3 का इशारा है, लेकिन 5 तरीके वो हैं जिन्हें आसानी के लिए समझा जा सकता है। वही का पहला तरीका है नबी के दिल में कोई बात आ जाना, जिसे आम बंदों के लिए इल्हाम कहते हैं, मगर नबी के लिए ये भी वही है। और इसकी मिसालें रिवायात में मौजूद हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने कई मकाम पे कहा कि मेरे परवरदिगार ने मेरे दिल में ये बात डाली। ये वही का वो तरीका है जिसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है। 40वें साल ही वही नहीं आई, बल्कि नबूवत की पूरी जिंदगी ये सिलसिला रहा। दूसरा तरीका बड़ा मशहूर है, ख्वाब के जरिए से वही आना। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए से हुक्म मिला कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करो। और पैगम्बर इस्लाम के बारे में तो बहुत ही मशहूर वाक़या है कि मक्का कैसे फतह हुआ। अल्लाह के रसूल ने मदीने में एक रात को सोते वक्त ये ख्वाब देखा कि मैं एहराम पहनकर खाना काबा का तवाफ कर रहा हूँ, और अगले दिन हुक्म दिया कि मुझ पर वही आ गई है कि मुझे मक्के जाना है, जिसका तज़किरा कुरान के 48वें सूरह फतह में है कि ए अल्लाह के रसूल, हमने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तीसरा तरीका है कि फरिश्ते का अपनी असली शक्ल में आकर वही पहुंचाना, वो चाहे जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो या इसराफील अलैहिस्सलाम, लेकिन ज्यादातर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही आए। ये वो तरीका है कि जिसका 40 साल के बाद आगाज हुआ। 40 साल से पहले ख्वाब के जरिए वही आ रही थी, दिल के जरिए वही आ रही थी, मगर तीसरा तरीका फरिश्ते के जरिए से वही का आना ये 40वें साल से शुरू हुआ, जिसके बारे में एक रिवायत है। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु पैगम्बर इस्लाम के इंतहाई जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उन्होंने मक्का की जिंदगी में इस्लाम कबूल किया, बहुत शुरू के मुसलमानों में से हैं। ये अपने इस्लाम लाने से पहले का वाक़या बयान करते हैं कि मैं एक दिन अपने घर से काबे की जानिब जा रहा था कि रास्ते में मेरा गुजर पैगम्बर इस्लाम के दरवाजे के सामने से हुआ। तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला है और रसूल अपनी बैठक में बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठ के बात कर लूं। रसूल के पास जाकर बैठ गए और बातचीत शुरू हो गई। ये वो जमाना है कि पैगम्बर इस्लाम को नबूवत का ओहदा मिल चुका है, लेकिन अभी अलल ऐलान तबलीग शुरू नहीं हुई। मैं जाके बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, हमारी बातचीत होते होते एकदम रसूल खामोश हो गए और दाईं तरफ देखने लगे। देखते जाते हैं और इस तरह सर हिलाते जाते हैं जैसे कोई किसी से बातचीत करते हुए सर हिलाता है। फिर बाईं तरफ देखने लगे और वहां भी सर हिलाने लगे। थोड़ी देर के बाद ये गुफ्तगू खत्म हुई तो मैंने पूछा कि एकदम बातचीत करते हुए आप खामोश क्यों हो गए और ये किसकी तरफ आप देख रहे थे? कहा कि अभी अभी फरिश्ता वही इलाही लेकर मेरे पास आया था। कुरान की ये आयत अभी मुझ तक पहुंची है। इन्नल्लाह याअमुरु बिल अदल वल इहसान वल ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत अभी अभी जिब्राइल ने मुझे पहुंचाई है। उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये कलाम सुन के मैं वहां से चला गया। वही का चौथा तरीका ये है कि फरिश्ता हुक्म को लेकर आता है, मगर अपनी शक्ल में नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में। और अक्सर पैगम्बर इस्लाम के एक सहाबी हैं दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। इसके बारे में हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू की एक रिवायत है कि एक दिन मैं पैगम्बर इस्लाम के करीब से गुजर रहा था
तो देखा कि पैगंबर इस्लाम लेटे हुए हैं और पैगंबर का सर दहिया कल्बी की आगोश में रखा है। पैगंबर इस्लाम लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं। मैं समझ गया कि वही आ रही होगी, इसलिए पैगंबर लेटे हुए हैं या आराम कर रहे होंगे। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो दहिया कल्बी ने मुझे रोक के सलाम किया, ए रसूल के भाई, आप पर मेरा सलाम हो। मैंने जवाब दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आ गए हैं, मुझे इजाजत दीजिए, इसलिए कि इस आदत और फजीलत के हकदार मुझसे ज्यादा आप हैं कि आपकी आगोश में पैगंबर का सर रहे। ये कह के दहिया कल्बी खड़े हो गए और मैं फौरन बैठ गया और रसूल का सर अपनी गोद में लिया और वो मुझे सलाम करके चले गए। पैगंबर ने आंखें खोली और कहा कि ए अली, किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये दहिया कल्बी आपके सहाबी थे जिनकी आगोश में आप सर रख के सो रहे थे। वो अभी ये खिदमत मेरे सपुर्द करके चले गए हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, ये दहिया नहीं है, बल्कि ये जिब्रील अमीन हैं जो इस शक्ल में मेरे पास आए थे अल्लाह का पैगाम लेकर, और तुम्हें देखकर जिब्राइल यहाँ से रुखसत हुए। तो ये चौथा तरीका है वही का कि जिब्राइल आते हैं इंसानी शक्ल में, लोग उनको देखते हैं, उनसे बात करते हैं, पता नहीं चल पाता है कि ये जिब्राइल हैं। और पांचवी और आखिरी सूरत ये है वही का वो तरीका जो सबसे अहम है। वो ये है कि बगैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट और बराह रास्त अल्लाह और रसूल की बातचीत। ज्यादातर लोगों के जहनों में ये तस्वुर है कि जितना कुरान आया, जितनी वही आई, सब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। मगर वही का पांचवा तरीका ये है कि परवरदिगार अपने हबीब से बराह रास्त कलाम करता है, बीच में कोई फरिश्ता नहीं, बीच में कोई वास्ता नहीं। जैसा कि वाक़या मेराज में हुआ कि वहाँ जिब्राइल भी नहीं है, अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपने हबीब से बात की। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी से बराह रास्त बात हो सकती है तो फिर तमाम अंबिया के सरदार से बात क्यों ना हो। बल्कि अक्सर रिवायतों में तो ये भी है कि कुरान की बहुत सी आयतें भी इस तरह नाजिल हुईं कि जिब्राइल का बीच में दखल ही नहीं है, बल्कि बराह रास्त वही आई। किसी ने एक मरतबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि फर्जंदे रसूल, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके जद पैगंबर इस्लाम के पास आते थे तो पैगंबर इस्लाम की क्या हालत हो जाती थी? क्योंकि आमतौर पर यह मशहूर है कि जब कोई वही आती है तो पैगंबर का सारा जिस्म कांपने लगता है, चेहरे का रंग उड़ जाता है। वही खत्म होती है तो रसूल पसीने पसीने होते हैं, रसूल के चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। इमाम ने कहा कि तूने गलत कहा, जिब्राइल के सामने रसूलुल्लाह की ये हालत कभी हो ही नहीं सकती। वो तो खुद उनके एक अदना खादिम हैं, जब आते हैं तो अदब और एहतराम के साथ बैठते हैं और जब तक रसूल इजाजत ना दें एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकालते हैं। रावी ने कहा कि ए फर्जंदे रसूल, ये तो सारे मुसलमानों में मशहूर है कि वही का बोझ बहुत बड़ा होता है और जिब्राइल वही देते हैं तो रसूल इसके वजन से कांपने लगते हैं। कहा कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने के वक्त नहीं होता, ये उस वक्त होता है जब कभी परवरदिगार बराह रास्त रसूलुल्लाह पे वही नाजिल करता है बगैर जिब्राइल के वास्ते के। और फिर तज़किरा किया सूरह माइदा का। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद है कि एक दफा मैं रसूलुल्लाह के साथ जा रहा था, रसूलुल्लाह अपनी सवारी पर थे, मैं अपनी सवारी पर था। रसूल करीम खच्चर पर सवार थे। एकदम वो खच्चर रुक गया और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि पैगंबर का जिस्म कांप रहा है, सारे जिस्म से पसीना निकल रहा है और पैगंबर का खच्चर इस तरह से झुकता चला जा रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसका पेट जमीन से लग जाएगा। थोड़ी देर तक ये कैफियत रही कि ऐसा लग रहा था कि खच्चर में खड़े होने की ताकत नहीं है, इतना वो कमजोर हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद ये हालत खत्म हो गई। पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा मुझे देखा। मैंने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या कैफियत है? कहा कि अभी अभी परवरदिगार ने बराह रास्त सूरह माइदा की कुछ आयतों को नाज़िल किया है। तो जब बराह रास्त वही आती है, उस वही का वजन इतना होता है कि जिस जानवर पर पैगंबर इस्लाम है उसकी कमर टूटने लगती है। और वही के इस तरीके के बाद पैगंबर इस्लाम कमजोरी महसूस करते थे, वरना दूसरे 4 तरीकों में कोई कमजोरी महसूस नहीं होती थी। ये ऐसा सिलसिला है कि जिसमें जिब्राइल की जरूरत नहीं है, बल्कि बराह रास्त रसूल अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं वही के: इल्हाम, ख्वाब, फरिश्ते का इंसान की शक्ल में आना, फरिश्ते का फरिश्ते की शक्ल में आना, और आखिरी तरीका ये है कि बराह रास्त वही का नाजिल होना। चुनाचे बात हो रही थी पहली वही की। 27 रजब की तारीख थी, जुमे का दिन था और अंग्रेजी हिसाब से नौरोज की तारीख पड़ रही थी। बेयक वक्त नौरोज और 27 रजब दोनों जमा हो रहे थे। जुमा का दिन है। पैगंबर इस्लाम 7-8 दिन से गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। उस वक्त मलाइका को उस चीज की इजाजत मिल गई जिसके लिए मलाइका बेचैन थे और तड़प रहे थे कि हमें रसूल के पास जाकर रसूल की ज़ियारत का मौका मिलना चाहिए। परवरदिगार ने कहा, ऐ मेरे मलाइका, आज तुम्हें इजाजत है। चुनाचे अलस सुबह से फरिश्तों के गिरोह दर गिरोह गारे हिरा में उतरने लगे। फरिश्ते इंसान की तरह नहीं हैं कि उनका हुजूम इंसान के लिए जगह को तंग कर दे। गारे हिरा में फरिश्तों के फरिश्ते उतर रहे हैं
एक एक गिरोह आता है और आके पैगम्बर इस्लाम को सलाम करता है। यहाँ तक कि जब ये सारे फरिश्ते आ गए तो रिवायत ये है कि इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर और मीकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर एक साथ गारे हिरा में दाखिल हुए। दोनों फरिश्ते 70,000 साथियों के साथ पैगम्बर इस्लाम के सामने पहुंचे और साथ एक कुर्सी लेकर आए जो सुर्ख याकूत की बनी हुई है। सुर्ख याकूत जन्नत के उस पत्थर का नाम है जिससे जन्नत के मोहल्लात, खैमे और जन्नत का फर्नीचर बनाया गया है। कुर्सी को रखा जाता है और जिब्राईल व मीकाईल अलैहिमुस्सलाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्वास्त करते हैं कि अब आप इस पे तशरीफ रखिए। पूरी शान के साथ पैगम्बर इस्लाम उस कुर्सी पे तशरीफ फरमा होते हैं और फरिश्तों ने पैगम्बर इस्लाम के सर पर ताजे नबूवत रखा। इसके बाद सारे फरिश्ते हाथ बांधकर पैगम्बर इस्लाम के सामने कितार दर कितार खड़े हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे आगे हैं और ऐन इस मौका पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, अब ये पहली वही आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना बिल अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यानी पढ़िए अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया, वो परवरदिगार जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया, वो परवरदिगार के जिसने इंसान को कलम के जरिए से तालीम दी और इंसान को वो सिखाया जो इंसान पहले नहीं जानता था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही इलाही के अल्फाज पैगम्बर इस्लाम तक पहुंचा रहे हैं, इस हालत में कि याकूत सुर्ख की कुर्सी पर ताजे नबूवत को सर पे रखे पैगम्बर इस्लाम तशरीफ फरमा है और कुरान की ये 5 आयतें नाजिल हुईं और पैगम्बर इस्लाम ने इन 5 आयतों को दोहराया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर लवाए हमद खुदा का परचम पैगम्बर इस्लाम के सुपुर्द किया। ये वही झंडा है कि जिसके साये में पैगम्बर इस्लाम के मानने वाले क़यामत के मैदान से जन्नत की जानिब बढ़ेंगे और जन्नत में जहां रसूल का क़याम होगा उस महल की छत पे ये परचम लगाया जाएगा। इस शान से वही इलाही नाजिल हुई। पैगम्बर इस्लाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को सुना। रिवायत यह है कि इन 5 आयतों को सुनने के बाद पैगम्बर इस्लाम अपने मकाम से बुलंद हुए, फिर अदब और एहतराम से फरिश्ते 2 कितारों में खड़े हो गए। पैगम्बर इस्लाम इन दोनों के दरमियान से निकले। बाहर आते हुए लिवाए हमद यानी उस झंडे को दोबारा जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया और अब जो पैगम्बर इस्लाम बाहर आ रहे हैं तो उस वक्त जितने भी दरख्त, पत्थर और जानवर रास्ते में हैं, हत्ता कि रिवायत यह है कि उस वक्त खाना काबा तक सबकी जानिब से एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पैगम्बर इस्लाम गारे हिरा से बाहर आए। जिब्राईल जाना चाहते हैं। जाते जाते कहा कि बस एक आखिरी पैगाम और जो आपको अनकरीब मिल जाएगा। पैगम्बर इस्लाम गारे हिरा से बाहर आए और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने घर की जानिब रवाना हुए। घर में जाते ही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में लेट गए। कई दिनों के बाद पैगम्बर इस्लाम वापस आए हैं। जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे एक चादर ओढ़ा दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। जनाब खदीजा ने चादर लाके पैगम्बर इस्लाम को ओढ़ा दी। इस दौरान सूरह मुद्दस्सिर की पहली 7 आयात नाजिल हुईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्जा फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फस्बिर। ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठिए और तंबीह कीजिए और अपने रब की किबरियाई का ऐलान कीजिए और अपने लिबास को पाक रखिए और नापाकी से दूर रहिए और एहसान ना जतलाएं कि अपने अमल को बहुत समझने लग जाएं और अपने रब की खातिर सब्र कीजिए। कुम फअंज़िर, उठिए और तंबीह कीजिए का पैगाम सुनकर पैगम्बर इस्लाम चादर को उलट के अपने मकाम से खड़े हुए, किबले का रुख किया और अपने कानों में उंगलियां दाखिल करके अल्लाह अकबर की सदा 2 या 4 दफा बुलंद की, जो अब तक इस्लाम में मुस्तहब है हालत अजान में। बाज़ रिवायतों में ये है कि ये आवाज़ दुनिया के तमाम मौजूदात तक पहुँच गई और उनमें से जिसने इसका जवाब दिया वही पैगम्बर इस्लाम का मानने वाला बना। ये आवाज़ पैगम्बर इस्लाम देते हैं हुक्म कुरानी के एहतराम में और हुक्म कुरानी पर अमल करने के लिए। इसी मौका के मुतल्लिक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जैसे ही पैगम्बर ने अल्लाह अकबर कहा, मैंने देखा कि एक इंतहाई खौफनाक आवाज़ बुलंद हुई। मैंने आगे बढ़कर पैगम्बर इस्लाम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, ये आवाज़ कैसी थी? आपने अल्लाह अकबर कहा। इसके जवाब में अल्लाह अकबर तो आ रहा है, मगर ये खौफनाक व हैबतनाक आवाज़ कैसी है? जवाब दिया, ए अली, ये शैतान के चीखने की आवाज़ है, क्योंकि आज शैतान मायूस हो गया। रिवायत में है कि 4 ऐसे मकाम थे कि जब शैतान ने चीख मारी है। पहला मौका जब शैतान ने सजदा नहीं किया और उसे बारगाह इलाही से निकाल दिया गया। दूसरा मौका जब उसे जन्नत और आसमानों से भी निकाल दिया गया। तीसरा मौका जब पैगम्बर इस्लाम ने इस तरह ऐलान रिसालत किया और चौथा मौका जब अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा नाजिल हुआ।
ये 4 मौके ऐसे हैं कि शैतान इन मौकों पर बिल्कुल मायूस होकर चला गया। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि ए अली, आज शैतान मायूस हो गया कि अब कोई उसके साथ नहीं चलेगा, अब कोई उसके रास्ते पर चलने वाला नहीं है। तो इस तरह पैगंबर इस्लाम पर एक ही दिन में 2 अलग अलग वहियां नाजिल हुईं। पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली और दूसरी सूरह मुद्दस्सिर की आयतें। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ रुख किया और फरमाया कि ए खदीजा, क्या तुम्हें पता है कि परवरदिगार ने अब रिसालत के ऐलान का हुक्म दे दिया है, और अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो फिर कलमा पढ़ो। जनाब खदीजा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सा कलमा? पैगंबर इस्लाम ने जनाब खदीजा को कलमा पढ़ाया। जनाब खदीजा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तो पहले ही यकीन किए बैठी थी कि आप यकीनन सच्चे नबी और सच्चे रसूल हैं, मगर आज जुबान से भी इसका ऐलान कर देती हूँ। उन्होंने कलमा पढ़ा। हजरत अली करमल्लाहु वजहू उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे। उन्होंने भी फौरन आपकी रिसालत को तस्लीम किया। तीसरे नंबर पर इस्लाम को कबूल करने वाली शख्सियत हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जो जनाब खदीजा के गुलाम और पैगंबर इस्लाम के मुंह बोले बेटे भी थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त हजरत खदीजा के भतीजे हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे, क्योंकि उनके साथ उनकी दोस्ती थी। हकीम बिन हिज़ाम जनाब खदीजा के वो भतीजे हैं कि जिन्होंने उस वक्त मुसलमानों की मदद की जब मुसलमान शेब अबी तालिब के मुहासरे में आ गए थे। उनको अपनी फूफी जनाब खदीजा से बहुत मोहब्बत थी और हजरत ज़ैद बिन हारिसा पहले उन्हीं के गुलाम थे। उन्होंने लाके अपनी फूफी को दे दिया था। तो वहाँ उनके घर में बैठे हुए थे कि इतने में हकीम बिन हिज़ाम की एक कनीज दौड़ी दौड़ी आई और हकीम बिन हिज़ाम से कहा कि आपने कुछ सुना? आपके फूफा ने एक अजीब दावा किया है और आपकी फूफी ने उसको फौरन कबूल कर लिया है। हकीम कहते हैं, क्या बात हुई? कनीज ने पूरा वाकया सुनाया कि मैं गई थी तो वहाँ कलमा पढ़ा जा रहा था, इस्लाम पेश किया जा रहा था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सुनते ही खड़े हुए और कहा, मैं खुद जाके तहकीक करूंगा। रसूल करीम के पास आए और तहकीक करने के बाद कलमा इस्लाम पढ़ा। चुनाचे इस तरह औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत हजरत खदीजा बनी, नौजवानों में हजरत अली करमल्लाहु वजहू और बूढ़ों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब यहाँ पे एक रिवायत है कि जनाब खदीजा इस्लाम कबूल कर चुकी थी, मगर दिल ये चाहा कि मजीद इसकी तस्दीक की जाए। चुनाचे वो अपने चचा वरका इब्न नौफल के पास पहुंची। वरका इब्न नौफल वही शख्सियत हैं जिन्होंने जनाब खदीजा का निकाह करवाया था पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जाके कहा कि चचा, एक बात तो बताइए, ये जिब्राइल कौन है? वरका इब्न नौफल ने सुना तो बेइख्तियार कहा, कुद्दूसुन कुद्दूसुन, तुम्हारी जुबान पे ये नाम कैसे आया? मक्का जैसा शहर कि जहाँ सब बुत परस्त रहते हैं, तुम्हें ये नाम किसने बताया? जनाब खदीजा ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे ये बताया है कि जिब्राइल उनके पास आए और इस अंदाज से आए। वरका इब्न नौफल कहते हैं कि खुदा की कसम, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पे आ चुका है, और तुम्हारे शौहर ने जो जो हालत बताई ये सब वही है जो तौरात व इंजील में लिखी हुई है। तुम्हारा शौहर अल्लाह का सच्चा रसूल है और फौरन उसके ऊपर ईमान ले आओ। जनाब खदीजा के दिल को तसल्ली और इत्मीनान हुआ। चुनाचे जनाब खदीजा वरका इब्न नौफल के घर से बाहर आईं, वापस अपने घर जा रही हैं कि रास्ते में खुदास राहिब का घर नजर आया। ये भी मक्के का एक राहिब था और ईसाई था, काफी सालों से मक्के में रहता था। सोचा कि उससे भी मिलती चलूं। उसके पास पहुंची और सलाम किया। उसने पूछा, क्या बात है बेटी? पूछती हैं कि जिब्राइल का नाम कभी आपने सुना है? वो खुदास राहिब भी एक मर्तबा घबरा गया। उसने भी कहा, कुद्दूसुन कुद्दूसुन, मुशरिकों और बुत परस्तों के शहर में ये नाम जिब्राइल तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि आप मेरे शौहर को तो जानते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास जिब्राइल आए हैं और ये निशानियां बताईं। खुदास कहता है कि मैंने तौरात तो नहीं पढ़ी, मगर खुदा की कसम इंजील में जो निशानियां हैं ईसा अलैहिस्सलाम पे आने वाले फरिश्ते की, ये सारी वही निशानियां हैं जो तुम बता रही हो। मगर हाँ देखो, कभी ऐसा भी होता है कि बाद औकात शैतान अपने आप को फरिश्ता बना के पेश करता है, और चूंकि शैतान काफी अरसा फरिश्तों के साथ रह चुका है तो वो फरिश्तों जैसी बातें भी करता है। ऐसा करो कि मैं एक तावीज लिख के तुम्हें देता हूँ, ये तावीज लेकर अपने शौहर के पास जाओ और ये तावीज उनके जिस्म के करीब रख देना। अगर उनके पास शैतान आया होगा तो इस तावीज की वजह से फिर वो अपनी जुबान से कुछ ना कह सकेंगे, और अगर वो असली फरिश्ता होगा तो फिर मेरा तावीज बेकार हो जाएगा। और बेटी, ये भी सुनो कि मैंने 3 रातों से ख्वाब में देखा है कि जिब्राइल इस मक्के में उतर के आ रहे हैं 3 रातों से, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किसके घर में आ रहे हैं, लेकिन अब अगर मेरे तावीज ने असर दिखाया तो पता चल जाएगा। ये तावीज ऐसा है कि जब इसे करीब रखोगी, अगर शैतान फरिश्ते की शक्ल बना के आया है तो फिर तुम्हारे शौहर कलाम नहीं कर सकेंगे हफ्ता, और बहकी बहकी बातें करेंगे, वरना मेरा तावीज बेकार हो जाएगा।
अगर वो सही फरिश्ता है। जनाब खदीजा को इत्मीनानो यकीन तो है मगर तावीज़ लेके चलीं। जिस वक्त घर में दाखिल हुई तो देखा पैगम्बर इस्लाम तशरीफ फरमा है और जुबान पर सूरह कलम की इब्तदाई आयतें हैं। ये कुरान की तीसरी वही है। पहली वही सूरह इकरा यानी सूरह अलक, दूसरी वही सूरह मुद्दस्सिर और तीसरी वही सूरह कलम। जैसे ही जनाब खदीजा दाखिल हुई पैगम्बर इस्लाम सूरह कलम की तिलावत कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। नून और उस कलम की कसम कि जिससे तुम लिखते हो, तुम अपने परवरदिगार की नेमत की वजह से मजनून नहीं हो, यानी बहकी हुई बातें नहीं कर रहे, तुम पर वही नाजिल हो रही है। बस इतना सुनना था कि जनाब खदीजा ने कहा कि अब तावीज़ की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो जुमला इस वक्त कुरान की आयत में आ गया। तो उस राहिब ने बताया था कि अगर शैतान आया होगा तो उस वक्त पैगंबर मजनूनों जैसी बातें करेंगे। और यहाँ जैसे ही तावीज़ लेके मैं घर में पहुंची, पैगंबर की जुबान पे जुमला है वमा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि ए मेरे हबीब, तुम्हारे परवरदिगार की नेमत तुम पे आई है, तुम मजनून नहीं हो। जनाब खदीजा उल्टे पांव गईं और खुदास को पूरा वाकया सुनाया। उसने कहा, मैं खुद चलना चाहता हूँ। आया वो रसूल खुदा के पास, सर से पैर तक पैगंबर को फिर गौर से देखा और कहा कि मुझे मोहर नबूवत की ज़ियारत करने दें। पैगंबर इस्लाम ने शाने पर से रिदा हटाई, मोहर नबूवत की ज़ियारत करता है और उसे चूमकर बेइख्तियार गश खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और फिर कहता है कि इस वक्त मोहर नबूवत की चमक ये बता रही है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आ चुके हैं। और फिर एक सवाल किया, इतना और बता दें कि क्या आपको जिहाद का हुक्म मिल चुका है? पैगंबर ने कहा, नहीं, अभी मुझे जिहाद का हुक्म नहीं मिला। कहा, अनकरीब आपको ये हुक्म मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपकी कौम आपको मक्के से निकाल देगी और आपको उनसे जिहाद करना पड़ेगा। काश मैं इतने दिन जिंदा रह जाऊं कि आपका साथ दूं और आपकी मदद करूं। पैगंबर इस्लाम ने खुदास को रुखसत किया। जनाब खदीजा के यकीन और ईमान में और इजाफा हो गया और तारीख बताती है कि इसके बाद अब पैगंबर ने तबलीग शुरू कर दी। लेकिन ये तबलीग का पहला दौर है। पैगंबर इस्लाम की तबलीग दो हिस्सों में है। जब कुरान के ये 3 सूरे मुसलसल आए, सूरह इकरा यानी सूरह अलक, सूरह मुद्दस्सिर और सूरह कलम, इसके बाद अब पैगंबर ने तबलीग शुरू की। लेकिन शुरू के 3 साल पैगंबर को हुक्म था कि देखो अलल ऐलान तबलीग ना करना। वो जो वाकया बयान किया जाता है कि पैगंबर इस्लाम ने जैसे ही रिसालत के पैगाम को पाया तो फौरन पैगंबर इस्लाम ने अपने खानदान वालों की एक दावत की, जिसे दावत दुल अशीरा कहा जाता है। नहीं, ये वाकया 3 साल बाद का है। इसी तरीके से निसाब की किताबों में जो एक वाकया हम पढ़ते हैं कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो इसके बाद पैगंबर इस्लाम पहाड़ी पे चढ़े और ऐलान किया था कि मक्के वालों, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन है तो क्या मेरी बात का यकीन करोगे या नहीं करोगे? और देखो, मैं एक सच्चा पैगाम लेके आया हूँ। मगर वो वाकया भी 3 साल बाद का है, इसलिए कि गारे हिरा में पहली वही नाजिल होने के बाद कम से कम 3 साल ऐसे गुजरे कि पैगंबर इस्लाम को हुक्म था कि आप तबलीग पोशीदा तौर पे करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। तो पहले 3 साल ऐसे गुजरे कि पैगंबर इस्लाम लोगों के सामने आमतौर पर इस्लाम पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिसे देखते हैं कि ये मुसलमान बन सकता है उसे चुपके से इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। और जो आदमी मुसलमान बन गए उनसे ये कहा जाता कि तुम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में देखो, जो तुम्हें नजर आए कि हक की बात को कबूल कर सकता है तो उस तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाओ, और जब वो कलमा पढ़ने पे राजी हो तो फिर मेरे पास लेके आओ। तकरीबन 3 साल तक न दावत जुल अशीरा हुई, न खानदान बनु हाशिम में कोई ऐलान हुआ, न ही पहाड़ पे चढ़ के पैगंबर इस्लाम ने कोई ऐलान किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पैगाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से कोई भी तहरीक जब चलती है तो पहला मरहला होता है अंडरग्राउंड, पहले फिक्र को आगे बढ़ाओ और फिर मुआशरे से टक्कर लेना। तो इन 3 साल की मेहनत के नतीजे में 134 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन 134 आदमियों में 9 गुलाम और कनीजों में शामिल थे और बाकी 125 जो थे उनमें भी 2 आदमी ऐसे थे जो कुरैश से बाहर के थे। 123 आदमी कुरैश वाले थे। यानी इस्लाम का पैगाम गुलाम और कनीजों तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि इनमें मुआशरे के पढ़े लिखे और समझदार लोग भी थे। अब ये जो 3 साल छुपा के तबलीग होती रही, इसमें यह था कि 2.5 साल तक तो पैगंबर इस्लाम ने कोई मरकज नहीं बनाया, बल्कि कभी इसके घर गए, कभी उसके घर गए, कभी किसी को बाजार में, कभी किसी को काबे में देखकर उसको इस्लाम का पैगाम दे दिया। और जो लोग मुसलमान होते गए वो एक दूसरे से मुलाकात करते गए। चुनाचे 5-5, 10-10 की टोलियां बन गईं। यानी हर कबीले से कुछ आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे। तो नमाज का हुक्म तो बिल्कुल शुरू में आ गया था। इधर कलमे का हुक्म आया, उधर नमाज का हुक्म आया। चुनाचे मुसलमान नमाज भी पढ़ते थे। एक मर्तबा ऐसा इत्तफाक हुआ कि इस नमाज की वजह से काफिरों को पता चल गया कि हमारे यहाँ एक नया मजहब आ गया है, कि बास मुसलमान एक पहाड़ की गार में जाकर नमाज पढ़ रहे थे।
क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने हुक्म दिया था कि अपने दीन को छुपाओ और अपनी इबादत को छुपाओ। वो नमाज पढ़ रहे थे कि कबीला बनी तमीम का एक आदमी वहां से गुजरा। हैरत से रुक गया कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये सोच तो मिल गई थी कि मक्के में कुछ हो जरूर रहा है, कोई नई तहरीक चली है। ये पता नहीं चला था कि ये सिलसिला किसने चलाया है, मगर हर कबीले को मालूम हो गया था कि हमारे कुछ नौजवान, हमारी कुछ औरतें, हमारे कुछ मर्द, उनका तरीका बदल गया है। चंद दिनों से अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। अजीब अजीब तरीके उनके हो गए हैं कि कभी दावत में नहीं बैठते, कभी शराब को छोड़ के खड़े हो जाते हैं। एक सोदबो तो हो गई, लेकिन अभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। 2.5 साल हो गए थे तबलीग रिसालत को कि बनी तमीम के उस आदमी ने देखा कि ये कुछ आदमी अजीब तरीके से खड़े हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी झुकते हैं, कभी गिरते हैं। उसने ये तरीका देखा तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तुमने क्या मस्खरापन शुरू किया है, और इस तरह कुछ मजाक की बातें कहीं। एक मुसलमान ने गुस्से के आलम में जानवर की एक हड्डी उठाकर उसके सर पे मारी, जिससे वो जख्मी हो गया, और इतने सारे मुसलमानों को देखकर वो वापस चला गया। मगर इस गलती की वजह से पैगम्बर इस्लाम ने अब मना कर दिया कि अब तुम लोग कहीं और मीटिंग भी ना करना, कहीं पे नमाज भी ना पढ़ना, बल्कि एक मकान मैं मुकर्रर करता हूँ। जब कभी एक दूसरे से मुलाकात करना हो या नमाज पढ़ना हो तो यहाँ आ जाया करो। और ये मकान था दारे अरकम। अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया। उनका मकान पैगम्बर इस्लाम ने इस मकसद के लिए मुकर्रर किया। इस मकान की खूबी ये थी कि यह मकान हरम यानी खाना काबा से बहुत करीब था। सफा और मरवा 2 पहाड़ियां जिनमें 7 मरतबा दौड़ा जाता है हज में, उनमें से सफा पहाड़ी से बिल्कुल मिला हुआ यह मकान था। इस मकान को पैगम्बर इस्लाम ने मरकज बनाया 2.5 साल के बाद कि यहाँ पर हम लोग छुप के जमा होंगे। जो नमाजें पढ़ना है अब न काबे में पढ़ो, न पहाड़ों में पढ़ो, न मैदानों में पढ़ो। नमाज यहाँ आके पढ़ो, इबादत यहाँ आके करो, मुलाकात यहाँ एक दूसरे से करो, और अगर इस्लाम की कोई बात पूछना है तो यहाँ आके पूछो। ये मरकज बन गया इस्लाम का 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर तो पैगंबर को हुक्म हुआ कि अब आप अलल ऐलान तबलीग कीजिए, लेकिन उस वक्त भी पैगंबर इस्लाम ने इसी को मरकज रखा। अलबत्ता काफिरों को पता चल गया कि अब मुसलमान यहाँ रहते हैं, और मक्के से हिजरत करने तक यही सबसे बड़ा मरकज रहा मुसलमानों का। 3 साल जब गुजर गए इस तबलीग को और 134 आदमियों ने कलमा इस्लाम पढ़ लिया, तब दावत ज़ुल अशीरा का हुक्म आया और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को खाने की दावत पर बुलाया और उन्हें इस्लाम का पैगाम दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।